कंप्यूटर ऑडियो आवाज आ रही है? टू दिस आ जाएगा Just ask if you can hear it. Share screen. Yeah, wait one second. Just see. Just ask if anyone can hear. Hello, am I audible? Hello. आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? The voice will be. Hello. Give a thumbs up अगर आवाज आ रही है तो यहाँ पे no just tell them give a thumbs up once the chat. Yes people Yes, here. okay. आ रही है आवाज. Mic is this. Yeah, it's fine. It's good. Okay. Can you hear everything? It's clear? Voice?
चलो, we can start. Hello everyone. Hello sir. Hello sir. ये वो आप ही आ रहे हैं। Okay, how are you all, sir? After a long Fine. time seeing you. Yeah, fine sir. टिकोनी जी क्या हाल चाल है? ठीक है सर। 2 दिन से पानी हो रहा है, लाइट नहीं है। ओह, पानी हो रहा है। I think so we should wait for 1-2 more minutes or let more participants join. जयेश भाई, अपने हाथ रेस किया है, बोलिए, कुछ पूछना है आपको? जयेश भाई, કેતન ભાઈ શું ચાલે છે? હેલો, હા, મજા છે કેતનભાઈ. સાહેબ તમારા રાજમાં? અચ્છા, મારા રાજમાં છો. તમારા રાજ કહેવાય ને, તમે તો ફ્રી થઈ ગયા ને અમને પેલા શું કહેવાય ઘર-બાર વગર ના કરી નાખ્યા તમે. શું વાત કરો છો યાર, એવું થોડી છે. એવું જોઈએ અમે છે ને તમારા હેલ્પ માટે ક્યારે પણ રેડી છે. હેલ્પ માટે છો, પણ પેલું કેવું આદત પડેલી હોય ને અમને. તમારી આદત છે વર્ષોથી, એટલા માટે. આ તો તમારો એક ટાઈમ લાગે ને. ફોન કોલ ઉપર રેડી છે તમારા. એ તો લેવો એ તો છે જ તમે, પણ પેલું શું કોમ્યુનિકેશન ગેપ થોડો વધી ગયો, બીજું કઈ નથી. બરાબર છે. પહેલા શું બીજાને કોલ કરવું પડે, ત્યાંથી નહીં સોર્ટ આઉટ થાય તો રાજેશભાઈને પાછા હેરાન કરો. ના મોસ્ટલી થઈ જાય યાર, મારા પાસે તો એકદમ લાસ્ટમાં કંઈક નહીં થાય તો આવે છે ને. બરાબર. બાકી બીજું બસ ચાલે છે સાહેબ. અનલોક થયું કે મહારાષ્ટ્રમાં? ગઈકાલે મીટિંગ હતી. ખબર નહીં, કઈ ન્યૂઝ આવી નથી. એ લોકો એક્સટેન્ડ કરવા માંગે છે. લોકડાઉન એક્સટેન્ડ કરવાના? હા, ખબર નહીં. તમે હવે બ્લેક ફંગસ લાવ્યા, વ્હાઈટ ને યેલો પણ લાવ્યા છે. હવે કેટલા કલર બાકી છે ભાઈ? અમે તો ખાલી કોરોનાનો સેકન્ડ વેવ લાવ્યા ગુજરાતના ઇલેક્શનમાં, પછી તો પેલા લોકો લાવ્યા ને મંગળવાર. અચ્છા, એવું છે. હા, કાલે તો પેલું વ્હાઈટ ફંગસ, યેલો ફંગસ, સતરંગી ફંગસ આવી જશે બધા. હવે શું છે, એવું હતું કે બધા પબ્લિક ને એવું હતું કે આપણે જીવીએ. હવે શું છે કે જે ગયા તે સુખી થઈ ગયા, જે છે તે ટેન્શન માં જીવવાનું. કઈ નહીં, બધું નોર્મલ જ છે. અમારે અહીંયા તો આવો નોર્મલ જ છે બધું ગુજરાતમાં. ઓકે, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન યર. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એવરીથિંગ વિલ બી ફાઇન એવરીવેર યાર. નો ઠીક છે, થઈ ગયું. We start 25. We should wait for 1-2 more minutes. So if I've muted everybody, we start with the webinar. See, basically सिक्योरिटीज लैंडिंग बोरिंग के बारे में आपको पहले भी बताया गया था. ठीक है, हम वापस से इसका एक डिटेल्ड आपको स्पेशली खाली इसी प्रोडक्ट के लिए बताने के लिए हमने ये वेबिनार रखा है. ठीक है, पहले हम आपको एक बेसिक के बता देते हैं, फिर हम इसका आपका पीपीटी के थ्रू जाएंगे और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो पूछ लीजिएगा आपको. ठीक है ना. सो टू स्टार्ट विथ सिक्योरिटी लैंडिंग बोरिंग, एक इट इज जस्ट एक नॉर्मल जैसे अपन शेयर्स किसी को लोन पे देते हैं उस तरह का मैकेनिज्म है. खाली फर्क ये है कि ये इट इज़ इसके बीच में गारंटर है जो उसको सेटल करा के देगा, जो है NSCCL. ये NSE का प्रोडक्ट है. NSCCL इसमें गारंटर है, आपकी क्लियरिंग पार्टी है वो. ठीक है, हम जैसे अपना जो शेयर्स हमारे पास डीमेट में पड़े हैं आइडल, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं,
या हम जिसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है हमने, उन शेयर्स को हम लैंड कर सकते हैं। लैंड करके उससे जो लैंडिंग फीस मिलेगी वो हमारा एक एडिशनल इनकम हो जाता है जो लॉक पोर्टफोलियो है उसके ऊपर। ठीक है, इसके लिए टैक्सेशन में भी इतना अच्छा प्रोविजन है कि आपका शॉर्ट टर्म में नहीं गिना जाएगा, आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म ही गिना जाएगा। आपने अगर उसको लैंड किया है और शेयर्स आपको जब भी वापस आता है, ये आपका ट्रांजेक्शन आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये अलग ही ट्रांजेक्शन गिना जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म हैंडलिंग लॉन्ग टर्म ही रहेगी। ठीक है, वी जस्ट स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। इंट्रोडक्शन, अर्न फ्रॉम लेंडिंग एंड बोरोइंग फ्रॉम आइडल सिक्योरिटीज। जैसे मैंने बताया कि आप अपनी जो आइडल सिक्योरिटीज पड़ी है आपकी डीमेट में, उसको आप लैंड करके अलग से एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। SLB is legally approved medium for lending and borrowing securities. Investors who have idle shares can earn good returns if they lend stocks to traders who want to engage in reverse arbitrage or go plain short on stocks. You can share the screen, Rajesh bhai. I've shared the screen, sir. No, we are seeing. Okay. Thank you. Yeah. The trend to lending stock on SLB platform is catching up amongst investors who have long-term stock portfolio. SLB is only allowed for future option stocks and A category stocks. Okay. SLB has benefited for both parties, lenders and borrowers. For lenders, SLB provides an incremental return on an idle portfolio. So, suppose one is holding 1,000 shares of XYZ company, which is to be held for long term. They could be lent whenever there is a demand. The lender gets lending fees, wherein NSCCL is the guarantor, is a settlement party. Similarly, a borrower is probably looking at one of those opportunities like arbitrage in stock price between two exchanges, reverse arbitrage, or when there is a future are at discount and stocks are up, to cover short options, for avoiding settlement failure, mispricing of options. Wherever they might be getting some opportunity, they would borrow the stocks from the lender. Increase profit and bonus onto lenders. You can earn lending fees on existing holdings. Also, dividend bonus are transferred to the lenders. Liquidity, this increase the liquidity for traders. If you're borrowing securities, you'll have increased liquidity and can protect your investments and portfolio, especially during the lockdown. As I said, taxation का reduced tax liability, lending does not occur at short-term capital gain. ये एक बेस्ट पार्ट है कि अगर आप लैंड कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हार्म नहीं करता है, आपका टैक्सेशन को फर्क नहीं पड़ता है. Lending, lender places an order with intermediary mentioning the stock, quantity to lend, time period and expected lending fees. Lending fees is quoted on per share basis. Example, XYZ 1,000 shares to be lent at ₹3 as of July. That was the rate on that day normally. Lender has to place the order through dealer terminal. The client branch of franchisee cannot directly place the order. For order placing हम लोगों ने एक अलग से एक email ID बनाया है slbm@sre.co.in. आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी लगती है, आप उसमें मेल कर दीजिए कि मेरा ये क्लाइंट कोड, यू हैव टू मेंशन द क्लाइंट कोड, ये क्वांटिटी, ये स्क्रिप्ट, ये रेट पे आप हमारा लैंडिंग के लिए डाल दीजिए. हमारा जो डीलर है जिसके पास SLBM का हमने राइट दिया है, वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा और आपको मेल पे तुरंत रिप्लाई भी करेगा कि आपका ऑर्डर गया है, नहीं गया, व्हाट इज द स्टेटस. ठीक है. Order matching on the lending fees take place similar to the trading on the exchange. The lender is required to make an necessary early payment of securities on the same day. ठीक है. ये जो in our case, since the demat account with us, POA दिया है क्लाइंट ने, ये हम लोग टेक केयर कर लेंगे. जैसे आपका क्लाइंट का लेंडिंग होगा, हम इमीडिएटली उसका अर्ली पेमेंट जो भी उसका सेटलमेंट का हमको करना है, हम उसको कर लेंगे. आपको इसमें कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. NSCCL allows paying of securities on T+1 day if 25% of stock value is provided as margin. However, it is compulsory to make early paying of lent securities on T day itself. No additional margin is required if early payment of security is made. Lending fee is credited to the ledger of the lender on T day. Now borrowing. Borrower places order for order matching in stocks, time period, quantity and lending fees. Borrower has to place orders through dealer terminal.
Same, the blind branches franchisee cannot directly place the order. Borrower is asked to bring in 125% of the stock value as margin. अगर आपको stock borrow करना है तो 125% margin देना पड़ेगा आपको upfront. And also the lending fees over and above the margin. Daily mark to market on the margin is levied to the borrower. At the end of the contract, lender gets the stock back and borrowers get his margin back. We'll go from certain descriptions. Platform automated screen based है, clearing settlement guarantee NSCCL की है. Market timing is 9:15 to 5 PM. मतलब किसी का अगर 3:30 के बाद में मालूम पड़ता है कि मेरा पोजीशन शॉर्ट रह गया है या मेरा कुछ अपॉर्चुनिटी रह गया, मुझे लैंड करना है या मुझे बोरो करना है, तो आप ये मार्केट का टाइम ले सकते हैं. ये 5 बजे तक का मार्केट है और इसका सेटलमेंट T+1 डे पे होता है. मतलब सुबह आपको पेइंग से पहले माल आ जाता है नॉर्मल केसेस में. ऑर्डर टाइप्स लैंड, बोरो, रिकॉल, रीपे. ट्रेड प्राइसेस, लैंडिंग फी पर शेयर. आपको कोड जो आता है वो पर शेयर बेसिस पे आता है. 12 मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक महीने का अलग कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम कर सकते हैं. नॉर्मल लिक्विडिटी जो है करंट महीने में रहती है. फर्स्ट लेग इज T+1 सेटल. रिवर्स लेग इज फर्स्ट थर्सडे ऑफ मंथ ऑफ रेस्पेक्टिव सीरीज. इसका जो सेटलमेंट होता है ये फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है. जैसे अपना FNO का लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, इसका सेटलमेंट फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है. लास्ट ट्रेडिंग डे इज 3 days प्रायर टू द सेटलमेंट डे. एलिजिबल सिक्योरिटीज all FNO securities plus eligible non-FNO securities, mostly A groups, and eligible index ETFs. There's a comparison between the lender and borrower. Lender is permitted to recall before the expiry. Similarly, borrower भी permitted to repay before the expiry. समझो अगर आपने lend किया है और आपको अपने शेयर्स वापस चाहिए जल्दी, जो भी मार्केट में रेट अवेलेबल है वो रेट पे आपको वो वापस से रिकॉल करने पड़ेंगे. मतलब आप एक तरह से परचेज करेंगे और आपको स्टॉक वापस आ जाएगा. सिमिलरली अगर आपने बोरो किया है, आपने उसके लिए मार्जिन पे किया है, आप कभी भी अपना स्टॉक वापस एक्सचेंज को दे के अपना मार्जिन रिलीज करा सकते हैं, विच इज कॉल्ड अर्ली रीपे. फर्स्ट स्टेप इज टू एंटर रिकॉल ट्रांजैक्शन इन द टर्मिनल एट द मार्केट डिटरमाइंड रेट. बोरोवर में फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अर्ली रिपेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू NSCCL अकाउंट. मार्जिन विल बी रिलीज इमीडिएटली. ठीक है. लेंडर TM नीड टू स्पेसिफाई इट एज रिकॉल. जो ऑर्डर डाल रहा है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये रिकॉल ट्रांजैक्शन है या रीपे ट्रांजैक्शन है. तो अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं, मेल पे क्लियरली मेंशन करिएगा कि मेरे को रिकॉल करना है या रीपे करना है. मार्केट विल व्यू द ट्रांजैक्शंस एज रेगुलर बोरो ट्रांजैक्शन. सिमिलरली कस्टडी कंफर्म्स द रिक्वायर्ड. लेंडर के केस में कस्टडी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है. जो हम लोग शेयर स्टॉक दे देंगे तो वही कंफर्मेशन हो जाएगा. और इसमें बोरोवर के केस में कस्टडी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है. जो आपके कॉर्पोरेट एक्सचेंजेस होते हैं उनमें अगर डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्री क्लोज नहीं होता है. आपने जो आपने लैंड किया है या बोरो किया है वो प्री क्लोज ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता है. आपको डिविडेंड बोनस सब आपको आपके शेयर्स के संग में वापस आ जाएगा. ठीक है. अगर बोनस आया है या मर्जर है या एमलगमेशन है, इस केस में आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो प्रो रेटा बेसिस पे आपका स्क्वायर अप हो जाएगा. आपका शेयर्स पहले आपको आ जाएंगे और आपके अकाउंट में ही वो फिर बोनस और उसका जो भी जिस दिन रिकॉर्ड डेट उससे पहले आपके अकाउंट में माल आ जाएगा और आपका एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगी. ये आपको रेट कहाँ देखने को मिलेगा ये मैं बताता हूँ. हमें NSeindia.com पे जाना है. NSeindia.com पे मार्केट डेटा के अंदर में स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग करके ऑप्शन आता है. इसमें आप जाइए, उसमें सिंबल सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा आपको लेफ्ट साइड पे. वहाँ आपको सीरीज B सिलेक्ट करना है. करंटली आपका जैसे अभी जून सीरीज चालू है बिकॉज एक्सपायरी फर्स्ट वीक को होगा. तो जून सीरीज का आपको अगर देखेंगे सीरीज जून B करके आपको आएगा. वहाँ पे आप जून सीरीज सिलेक्ट करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज आ जाएंगी जिसमें कुछ किसी ने कोड डाला है या किसी में कुछ ट्रेड हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज आपको दिखा रही है जिसमें 8500 क्वांटिटी का बायर खड़ा है 4.51 के रेट में और एक लेंडर है, मतलब सेलर बोलेंगे या लेंडर बोल लीजिए. इट इज इन केस में लेंडर है 6.95 में 100 शेयर के लिए. सो आप अपने हिसाब से अपना कोड डाल के चल सकते हैं.
जब भी जैसे आपने कोई लैंडिंग का रेट डाला है 5 रुपया, किसी बोरो का रिक्वायरमेंट होगा वो 5 रुपये में आपका शेयर ले लेगा, नहीं होगा तो आपका पेंडिंग पड़ा रहेगा। सिमिलरली जैसे हम ऑर्डर डालते हैं वैसे हम ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं। ये नॉर्मल एक आईसीआईसीआई प्रूली का चार्ट है 20/4 से लेकर 19/5 तक का, कि क्या ओपन हुआ था और क्या रेट पे ट्रेड हुआ था। जैसे इसमें आप देखेंगे 6 मई को 50 पैसे का प्राइस ओपन हुआ था और 3.25 का हाई हुआ है, मतलब 3 रुपये 25 पैसे का ट्रेड हुआ है। सिमिलरली हम 11 मई को देखेंगे तो 2 रुपये का ओपन हुआ था और 3.5 रुपये में ट्रेड हुआ है। 12 मई को 7 रुपये में ट्रेड हुआ है। सो अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अगर लिक्विडिटी है, वॉल्यूम हो रहा है, तो आपका यहाँ पे आपको डिमांड आएगी। अब ये अकाउंट हमें एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हम केवाईसी करते हैं उसके लिए आपके सब क्लाइंट का तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है कैश सेगमेंट में, एफएनओ सेगमेंट में। हमें खाली एसएलबीएम सेगमेंट एनेबल कराना है। उसके लिए आपको 2 फॉर्म लगेंगे। एक लगेगा एडेंडम टू केवाईसी। एडेंडम टू केवाईसी में उसने जो जो सेगमेंट एनेबल किए वो सब पे उसकी साइन करनी है। जैसे एसएलबीएम में उसको एनेबल कराना है तो एसएलबीएम में साइन करानी है एनएसई पे, ठीक है। नाम लिखना है, क्लाइंट कोड लिखना है, ब्रांच कोड लिखना है, आपको उसका ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। उसका फाइनेंशियल डेटा जो करंट है उसको अपडेट करना है, और यहाँ पे रनिंग ऑथराइज अकाउंट का जो नॉर्मल सिग्नेचर अपना होता है वो आपको यहाँ पे करवाना है। फिर अपना पावर ऑफ अटर्नी, जो आपने अकाउंट ओपनिंग वक्त पावर ऑफ अटर्नी दी थी, पीओए जो बोलते हैं, वो आपने खाली शेयर्स पे इन पे आउट के हिसाब से हमको दी थी नॉर्मली। उसमें एसएलबीएम के अकाउंट नंबर मेंशन नहीं थे, इसलिए आपको एक एडेंडम टू देना है। इसका पावर ऑफ अटर्नी का एक साइन करके लगेगा जिसमें हमने एसएलबीएम के अकाउंट नंबर भी मेंशन किए हुए हैं। तो क्लाइंट से आपको इसको भी साइन करा के देना होगा। जैसे आप पीओए नॉर्मल साइन कराते हैं वैसे ही आपको इसे भी एक साइन करा के देना है। यहाँ नीचे जो अकाउंट्स हैं इसमें अपने सारे अकाउंट्स हैं, एसएलबीएम के भी अकाउंट आ गए, अपने नॉर्मल पे इन पे आउट के अकाउंट्स भी आ गए, सब अपडेटेड अकाउंट नंबर आ जाएंगे। दैट्स ऑल, इतना ही। इसमें 2 डॉक्यूमेंटेशन खाली करने से आपका अकाउंट क्लाइंट का एसएलबीएम के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। आप इमीडिएटली उसको लैंड करा सकते हैं और काम करा सकते हैं क्लाइंट। नाउ अब आते हैं अपने अपने मुद्दे पे। जो क्लाइंट को लेंडिंग फीस मिलती है, जो भी हमने लेंडिंग किया है, ठीक है, लेंडिंग फीस पे 20% जो है अपन क्लाइंट से शेयर करते हैं, क्लाइंट से लेते हैं। समझो क्लाइंट ने अगर 1000 शेयर लैंड किया है 1 रुपये में, 1000 रुपये उसको इनकम हुआ, उसका 20% अपन लेंगे, 80% क्लाइंट को देंगे, ठीक है। और जो 20% है उसमें से हम 50-50 शेयर करेंगे। किसी कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनीबॉडी कैन। सर अभी अपने ई केवाईसी जो बनाए हैं, हाँ जी, तो उसमें एसएलबीएम क्यों नहीं जोड़ देते हैं? तो ऑटोमेटिक वो भी साइन क्लाइंट्स का नया अकाउंट ओपनिंग के साथ होते रहेगा। न्यू ठीक है, अकाउंट ओपनिंग में ये एसएलबीएम नहीं ऐड किया वाई केवाईसी में। राइट। तो वो मैं वेंडर से बात करता हूँ, अगर वो पॉसिबल होगा कंप्लाइंस के हिसाब से अगर कर सकते होंगे तो मैं उसको करवा देता हूँ। सर मैं आपका पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, एसएलबीएम टू बी एडेड इन ई केवाईसी। ठीक है, मैं जो होगा मैं आपको बता दूंगा सर। ठीक सर। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट नहीं? हेलो राजेश। हाँ, અરે હું શું કહું છું કે સમજો કે આપણે કોઈ ઓર્ડર નાખ્યો છે એસએલબીએમ માં, હા, આપણે અને એન્ડ ઓફ ધી ડે સમજો સોદો નથી થયો આપણો, હા, તો ઓર્ડર કેન્સલ થઈ જશે ને એન્ડ ઓફ हाँ ધી ડે? हाँ हाँ, ऑर्डर कैंसिल થઈ જશે। અચ્છા, ઓકે. Mr. Rajesh, यस, Vijay Adnani here. I Yeah, want to tell. know if the client has the shares, they are not in demat with size. Can he still follow this system? in that case you need to transfer the shares first. Once we receive the shares, then only we will place the order. Transfer the shares where? To the pool account. We'll share the pool account number to you. The client has to do the early paying,
and once we receive the early paid shares, we will place the order. Okay, fine. Thank you. Yeah. हेलो राजेश, Yeah. इसका टैक्सेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे? टैक्सेशन मैंने हाँ बोलिए। इसका जो जरा पहला मतलब मेरा थोड़ा मिस हो गया, अगर हो सके तो। हाँ, टैक्सेशन मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका जो क्लाइंट का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। भले क्लाइंट ने अगर लैंड किया है दिन में, अगर समझो उसने हर महीने लैंड किया, तो भी उसका जो एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस उसका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म ही रहेगा, वो टैक्सेशन इफेक्ट नहीं होगा। ये आपका जो इनकम नया इनकम है, ये नया इनकम शॉर्ट टर्म में आपको दिखाना होगा, बाकी आपका जो पुराना लॉन्ग टर्म है वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये शॉर्ट टर्म गेन में आ जाएगा? हाँ, ये जो नया इनकम आप जनरेट कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में आएगा अलग से एडिशनल, पर आपका जो पुराना पोर्टफोलियो जो आपने शेयर लैंड किया है, शेयर डेबिट हो रहा है फिर क्रेडिट हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन जो है वो आपके शॉर्ट लॉन्ग टर्म को इफेक्ट नहीं करेगा, वो लॉन्ग टर्म आपका इंटैक्ट रहेगा। I think Rajesh bhai, this is going in miscellaneous income, not in short-term capital gains. Okay. That's at least my clients are showing as miscellaneous income. So whatever the tax slab is applicable, they are paying as per that. Yeah, okay. सर शेयर्स में ना जनरली किस दिन अकाउंट में वापस आते हैं? सर जैसे इसका सेटलमेंट मैंने कहा था फर्स्ट थर्सडे होता है, तो थर्सडे शाम को फ्राइडे को आपके अकाउंट में माल आ जाता है वापस। अच्छा, जिस मंथ का वो है ना कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगा क्लाइंट प्लान करेगा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जून महीना चल रहा है, जून महीना क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो फर्स्ट जून को मतलब फर्स्ट थर्सडे ऑफ द जून को एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए जून महीना बोला जाता है। एक्चुअली पूरा मई महीना ही मिलता है आपको, जून के स्टार्टिंग के 3 दिन ही है, पर क्योंकि वो जून महीने फर्स्ट वीक में एक्सपायर होगा, उसको जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अभी हम लोग सर्च करेंगे तो जुलाई करके सर्च करेंगे। हाँ, अभी आपको करना है तो जुलाई करके करना होगा, तो आपको मिलेगा। जून का तो अभी एंड हो जाएगा, मतलब समझो ना, कल ही मंडे लास्ट ट्रेड होगा, फिर ट्रेड नहीं होगा उसमें जून में। अच्छा, ओके सर। हेलो राजेश जी। Hello, Rajesh ji. Yes, I think we need to see the demand for the shares, borrower's share. Right. The borrower. I have to first see the borrower's demand for the shares. Yes. Then I can quote, isn't it? Yes, sir. So I have already showed you where you can see the demand and supply rate, basically the quotes on the NSE platform. Suppose he is ready to borrow at 2 rupees. I can give a higher rate. I want 3 rupees. Yeah, you can. Yes, you can. No problem. I see. Now, just by having the shares, can I give a rate just like that? I'm prepared to lend at a particular rate. No. If the shares are with us, we will allow you to do the same. But if the shares are outside, we will not allow you, sir. Because the simple reason is the same day by 5 p.m. I have to do since the market closes by 7 p.m. I have to do early paying, which in your case might be a difficult task. So and suppose if you fail to do the paying, the penalty is direct closeout of 200%, sir. I see. हेलो राजेश जी। हाँ जी। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्क्रिप्ट अभी डिमांड में है? मतलब मैंने अभी कहा ना सर, आपको NSE इंडिया पे आपको जो मैंने बताया था, NSEindia.com पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको SLBM के लाइव कोड दिखाता है कि क्या क्या कोड चल रहा है। लाइव कोड है? हाँ, I'll do one thing, I'll show you. You can go here. Just yeah. इसको बंद कर दो, सेव करो। स्टार्टिंग से जाते हैं, ठीक है। I'll show. Is everybody able to see the screen? Hello. Yeah, we can see it. Yeah. See, we'll go to. I'll just go from starting. We'll go to NSEindia.com. Okay. We'll go to live products. Okay. SLB. I think so. This is the old website. New पे जाते हैं, ठीक है। ये दिस इज अ न्यू वेबसाइट, जो नॉर्मली आप ओपन करोगे तो यही वेबसाइट खुलती है। यहाँ में मार्केट डेटा में जाना है, मार्केट डेटा के अंदर सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरिंग में जाना है।
ठीक है, यहाँ पे फिल्टर बाय का जो ऑप्शन है, यहाँ हमें सीरीज बी में जाना है। सीरीज ए में अपन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। सीरीज ए में कुछ भी छोटा भी कॉर्पोरेट एक्शन होगा तो आपका प्री क्लोज हो जाएगा, इसलिए सीरीज ए को प्रमोट नहीं करते, इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। डायरेक्ट सीरीज बी में जाते हैं जून में। ठीक है, ये जो प्लेन जून 2021 लिखा है इसमें आपको जाना है। जून U2 में जाना है ना? नहीं, जून प्लेन जो है, जून 2021 खाली जो जून 2021 लिखा है उसमें जाना है हमको। ओके ठीक है, बस जून का तो सीधा अभी 2 दिन ही बचा है, तो इसमें ज़्यादा आपको दिखेगा नो नहीं। रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, नहीं नो रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, आ रहा है, देखिए ना, इसमें IRCTC में कोट आ रहा है 10 रुपये में देयर वाज अ बोरोवर, और जो लेंडर था वो 14 रुपये में था। इसमें 10 रुपये में ट्रेड भी हुआ है। ठीक है, जून 21 में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नो रिकॉर्ड दिखा रहा है। आपके सामने मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन स्क्रीन लिख के। जून 21 प्लेन ना? हाँ, जून 21 प्लेन सीरीज बी, सीरीज बी के अंदर। नॉर्मली ना इसमें वॉल्यूम या इसमें लिक्विडिटी आती है एक्सपायरी के टाइम पे, एक्सपायरी के एक दिन पहले या एक्सपायरी वाले दिन या उसका अगले दिन, कि बहुत सारे लोगों का समझो कोई कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह जाता है, उनको डिलीवरी ऑब्लिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब इसमें ज़्यादा डिमांड आती है। या किसी स्क्रिप्ट में अगर अच्छा खासा डिफरेंस चल रहा है, जैसे आपका स्टॉक प्राइस आपका ऊपर है और इसका फ्यूचर का भाव नीचे है, उस टाइम पे इसमें काफ़ी उस स्क्रिप्ट में यहाँ पे डिमांड आने चालू हो जाती है। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है, इसमें जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास पूरा लॉट साइज नहीं है। समझो अगर आपको से रिलायंस में काम करना है, रिलायंस का शायद 500 का लॉट है मेरे साथ, तो आपके पास 500 शेयर रिलायंस नहीं है, और समझो वहाँ पे मार्केट में डिफरेंस चल रहा है 5 रुपये का, तो आप वो गैप नहीं ले पाते हो। यहाँ पे आप 2 रुपये 2.5 रुपये में लैंड कर दीजिए, 3 रुपये में जो भी आपको कोड मिलता है, आपके पास 100 शेयर भी, आप 100 शेयर में 3 रुपये कमा सकते हैं अगर आप लैंडिंग करते हैं वो हिसाब से। इसमें मिनिमम कितना क्वांटिटी ट्रेड कर सकते आप एक क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हो। देयर इज नो मिनिमम साइज, मिनिमम इज 1 क्वांटिटी। राजेश भाई, हाँ जी, उनको इसमें लेंडर का कुछ लॉस तो नहीं है ना? हमारा जो भी हम रेट कोट करते हैं, दैट इज अ प्रॉफिट ओनली फॉर द लेंडर। यस डेफिनेटली, whether it is 2 rupees, 3 rupees, whatever. Instead of keeping idle, we can sell. Exactly, उसके लिए प्रोडक्ट बना है ना सर ये। हाँ, वही तो सालों से ऐसा ही पड़ा है, तो दे सकते हैं। एग्जैक्टली सर, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये प्रोडक्ट बना है, जो स्टॉक आपके डिमेट में आइडल पड़े हैं, जिसमें आप कुछ कमा नहीं रहे हो, या मंथली कॉन्ट्रैक्ट है ना? एवरी मंथ इट इज सेटलमेंट। यस मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, थैंक यू। और किसी कुछ डाउट वगैरह, कुछ क्वेश्चंस? वो राजेश, या लेंडर वो हमारा शेयर लेगा और बाद में हमको शेयर हमारा हमको देगा, प्रीमियम भी देगा, बराबर ना? एक मिनट वापस बोलिए सर। ये जो लेंडर है, अभी रिलायंस का शेयर उसको चाहिए, तो रिलायंस शेयर का वो किया, तो हमने उसको जो भी प्रीमियम चल रहा है उसमें उसके हिसाब से हमने डाल दिया, और मेरा वो शेयर एक्सेप्ट किया उसने। लेंडर नहीं, बोरोवर है सर, सामने वाला जो बोरोवर हो, आप लेंडर हुए। हाँ, वो तो बोरोवर ने एक्सेप्ट किया। हाँ जी, बोरोवर ने एक्सेप्ट किया, तो मेरा शेयर मेरा पोर्टफोलियो से निकल गया, डीमैट से। बिल्कुल। देन वो शेयर्स मुझे वापस कब मिलेगा? वो लास्ट डे ऑफ द ये सेटलमेंट है समथिंग, क्या है? यस, हाँ, इसका सेटलमेंट जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका सेटलमेंट फर्स्ट थर्सडे ऑफ माय मंथ होता है। ठीक है, अभी समझो अभी समझो जून का आपका सेटलमेंट फर्स्ट थर्सडे को हो गया, आपके अकाउंट में फ्राइडे को स्टॉक आ जाएगा। देन वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बोरोवर को फायदा क्या हो गया? मेरा शेयर लिया, मेरा शेयर वापस दिया और प्रीमियम भी दिया मुझे। हाँ सर, बोरोवर का अपना कुछ इंटरेस्ट होगा ना सर, उसने या तो फ्यूचर में ऑप्शन, फ्यूचर कैश में कुछ स्ट्रेटेजी बिठाया होगा, या उसने ऑप्शंस में उसका कुछ शॉर्ट रह गया होगा, तो उसने डिलीवरी ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए आपका शेयर लिया। जो भी उसका रिक्वायरमेंट है जॉबिंग में, उसको जो भी उसको डिफरेंस था, जो भी उसका रिक्वायरमेंट था, उसने वो सबसे शेयर आपसे लिए, आपने अपना लैंडिंग फीस कोट किया और आपने उसको शेयर दे दिए। तो बोरोवर फेल हो गया तो उसके लिए तो NSCCL है ना सर, NSCCL 125% मार्जिन लेती है बोरोवर से। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था, 125% मार्जिन
एनएससी से लेती है कोई डील कराने से पहले बोरोवर से, प्लस मार्क टू मार्केट भी उससे लेती है। मींस 100% सेफ है फॉर लेंडर्स। यस, 100% सेफ है लेंडर के लिए। और क्वांटिटी कितना भी फ्रॉम 1 यूनिट से कितना भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यस यस। बट राजेश, ये हमको खुद ही उधर वो सब एनएससी में देखने का है, तो एक मेजर एक कौन सा भी एक 10 शेयर्स ऐसा कुछ आपको लगता है बेस्ट है, तो वो ऐसा एक हमको मिल सकता है कि क्या हमको ही ढूंढना पड़ेगा? नहीं, इसमें ही से कोट आएगा ना, इसमें किसमें कोट अवेलेबल है अब बोलना डिफिकल्ट है। अभी जैसे अभी मैं जुलाई सीरीज देख रहा हूँ, तो आप देखिए टाटा है, टाटा स्टील BSL में अच्छा हुआ है आज। ओके। 5 रुपए का बायर था, 5.90 तक, मतलब 5.5 रुपए में काफी ट्रेड हुआ इसमें। ओके। 5.5 रुपए छोटा अमाउंट नहीं है ना सर। अच्छा खासा किसका 1000 शेयर पड़ा है, 5000 रुपए का आपका सीधा इनकम फिक्स हो गया। बराबर। ये सब राजेश एफएनओ स्टॉक्स नहीं है ना, कोई भी दूसरे भी स्टॉक्स इसमें आ सकते हैं? हाँ, नॉर्मली हमने कहा था कि एफएनओ स्टॉक प्लस ए ग्रुप के जो आइटम्स होते हैं वो इसमें ट्रेडेड होते हैं। भाई शेयरिंग का क्या बताया आपने? शेयरिंग का, प्रॉफिट शेयरिंग का? प्रॉफिट शेयरिंग का बताया सर कि क्लाइंट से अपन 80%। हाँ नहीं, क्लाइंट से अपन 20% ऑफ द लेंडिंग फीस लेते हैं। समझो अगर आपने 1 रुपए में किसी ने लेंड किया है, ठीक है, तो 20% मतलब 20 पैसा अपन लेंडिंग फीस लेते हैं। उसमें से 50-50 शेयरिंग करेंगे। ओके। हेलो राजेश भाई। विजय कुमार। या विजय जी बोलिए। सर, ये जो लेंडर जो कोट करेगा आपको ईमेल से, तो वो डीमैट अकाउंट से उसका शेयर चले जाएगा ना? हाँ सर, डीमैट अकाउंट से चले जाएगा। जो कोट करने का टाइम ही चले जाएगा क्या? नहीं, कोट करने के टाइम पे नहीं, आपका जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड, तो शाम को हम उसको अर्ली पे में दे देंगे, तो आपको शाम को स्टॉक माइनस हो जाएगा। ओके। जैसा ये रिटर्न जो आता है जो एक्सपायरी का टाइम, वो डीमैट में चले जाएगा क्या? हाँ, हम लोग को शेयर थर्सडे शाम को आता है लेट, तो हम लोग फ्राइडे सुबह सुबह दे देते हैं। इसलिए मैंने कहा फ्राइडे सुबह आपके अकाउंट में माल आ जाएगा। ओके। इन बीच में जो डिविडेंड जो आता है, ये जो आप थोड़ा वो डिविडेंड और बोनस का थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि डिविडेंड अभी बोरो होने का बोरो दिया है, लेंडिंग दिया है, तो वो टाइम में ये जो डिविडेंड आता है वो कैसा आएगा? डिविडेंड आपको शेयर के में वापस आ जाएगा। जब आपका शेयर आएगा वापस, साथ में आपको डिविडेंड का अमाउंट भी आ जाएगा। वो साथ में आ जाएगा? साथ में आ जाएगा। तो वो एक्चुअली वो बैंक क्रेडिट नहीं होगा, अपना लेडजर में क्रेडिट होगा? यस, वो बैंक क्रेडिट नहीं होगा, लेजर में क्रेडिट होगा। यस। ओके। इसमें कोई चार्जेस नहीं रहेगा ना? ये जो शेयरिंग आता है वही रहेगा क्या, या ये लेंडर्स को कोई अलग चार्ज आएगा? नहीं सर, 20% अपन उससे लेंगे, वही उसका चार्ज, वो दैट इज द फीस दैट वी आर टेकिंग। 20% अपन लेंगे, उस पर उसको जीएसटी लगेगा, बस और कुछ नहीं। ओके ओके, थैंक यू। और वो राजेश डीमैट चार्जेस अलग से कुछ लगेगा नहीं ना? सर वो तो नॉर्मल है, 20 रुपया 25 रुपया का उसके फ्लैट है सर, उसको उसमें कहाँ गिनेंगे। वो तो डीमैट का अलग है, बट वो तो नॉर्मल है ना, पर स्क्रिप्ट के ऊपर होता है। अगर आपने 1000 क्वांटिटी भी किया तो भी 20 या 25 रुपया है नॉर्मल। राजेश जी। हाँ जी सर। जो इसमें जो एग्जीक्यूट ट्रेड जो हो जाएगा, तो उसका मैसेज जैसे अभी नॉर्मल अपना जो ट्रेड होता है वैसे मैसेज आएगा कि शाम को जैसे ईमेल पे आएगा? सर शाम को कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ईमेल पे आएंगे बेसिकली। इसके बीच में जो ट्रेड एग्जीक्यूट है उसका मैसेज नहीं आएगा? नहीं, पर हम आपको मेल पे रिप्लाई करेंगे ना। जो आपने हमने इसलिए एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाया है, slbm@sre.co.in। आप उसमें मेल कीजिए, जो भी आपने ऑर्डर डाला है आपको उसी पे कंफर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, जैसे म्यूचुअल फंड में कंफर्मेशन का वैसा आ जाएगा? हाँ, वैसे आ जाएगा। ओके। राजेश, इसका ऑर्डर कैसे डालने का है? मतलब वो हमारे अपना बेस्ट इसमें आता है कि इसमें नहीं, उसके लिए मैंने पहले भी कैसे बताया था कि slbm@sre.co.in करके हमने ईमेल आईडी बनाया है। आपको कुछ भी ऑर्डर प्लेस करना है, उस पर आपको मेल करना होगा। आप क्लियरली क्लाइंट कोड मेंशन कीजिए, कौन सा स्क्रिप्ट में कितना क्वांटिटी और क्या रेट पे आपको लैंड करना है। लेकिन वो फिर तुरंत जाएगा क्या? क्योंकि ये तो रेट तो बदलते रहते हैं ना, रहेंगे ना? ये फ्लक्चुएट नहीं होता है, इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। अच्छा राजेश जी, जनरली इसमें वॉल्यूम कौन से सीरीज ज्यादा रहता है? नॉर्मली से मैं बताया कि इसमें एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक आध एक्सपायरी वाले के नेक्स्ट डे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और वो स्पेशली जो एफएन वाले स्क्रिप्ट उनमें होता है। राजेश सर, संजीव बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सर। सर, ये एक्सपायरी टाइम पे यानी जब एक्सपायरी नजदीक रहता है तब भी करना अच्छा रहेगा सर? सर डिपेंड्स ना, आपको जब भी कोड मिलता हो तब आप करिए ना।
नहीं नहीं, क्या कि यानी एक हफ्ते के पहले हमने किया तो अगले हफ्ते हमको वापस शेयर्स मिलेगा ना? आप पूरे महीने में कभी भी करिए, आपका सेटलमेंट जो है फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, तो आपको फर्स्ट फ्राइडे को आपके अकाउंट में माल आ जाएगा। ओके सर, ओके। और इसमें फॉर्म सब आप मेल कर देंगे क्या? नया सभी सबसे लेना पड़ेगा इसको करने का है? मैंने प्रेजेंटेशन में बताया सर, 2 फॉर्म है, एक केवाईसी एडेंडम का फॉर्म है और एक पीओ एडेंडम है। ये 2 फॉर्म आपको क्लाइंट से साइन करा के लेने हैं। तो वो कहाँ से डाउनलोड करूँ मैं? वो आपको सीआरएम से फॉरवर्ड मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, हाँ, जब भी आप आस्क करेंगे आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक। जैसे अभी सजेशन आया, हम ट्राई करते हैं, अगर ई केवाईसी में ऐड हो जाएगा तो आपका स्टार्टिंग से सब काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इसमें स्क्वायर ऑफ अलाउड है? नहीं, ये स्क्वायर अप नहीं होता है इसमें। स्क्वायर अप मतलब होता है कि समझो सेम डे तो आप इसमें इंट्राडे जैसे होता ही नहीं है, T2D सेटल होता है, ठीक है। बट जैसे आपने इसमें ऑप्शन है कि आपने किसको लेंड किया है। हाँ, ऊपर के भाव में। हाँ, जैसे मैंने समझो अभी किसी को लेंड किया 10 रुपए में, ठीक है, और कल कोई वो कम भाव में मेरे को भी मिल रहा है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, उसमें कि उसका कोई मायना नहीं है मतलब? नहीं, आप कर सकते हैं। जैसे आप सेम डे नहीं कर सकते। आज आपने लैंड किया है, आपका डिलीवरी जाने के बाद आप अगर उसको आप वापस बाय करना लेना चाह रहे हैं, तो आपको रिकॉल करके ऑर्डर डालना पड़ेगा। आप नया ऑर्डर डालोगे तो नया बोरो ऑर्डर जाएगा, आपको रिकॉल करके बताना पड़ेगा कि मुझे ऑर्डर स्क्वायर अप करना है, रिकॉल ऑर्डर डालो मेरा। तो रिकॉल करके ऑर्डर डालेंगे तब जाके आपका ये पोजीशन स्क्वायर अप होगी। रिकॉल ऑर्डर सेम डे में कर सकते हैं? नहीं, सेम डे नहीं होता है। राजेश जी। हाँ जी सर, ये जस्ट लाइक ए ट्रांजैक्शन हुआ ना, वही डिलीवरी डीमैट चार्ज लगने वाला है, वही जीएसटी लगने वाला है, वही सारा जीएसटी का इसमें हाँ जीएसटी लगेगा 20%। वो जीएसटी भी लगने आए, और इसका इनर आउट का डीमैट चार्ज भी लगेगा। इनका क्यों लगेगा? आउट का लगेगा खाली सर, वन टाइम जो लगता है आउट का लगेगा। उसी तरह उसको क्लाइंट को शेयरिंग भी लगेगा, सब कुछ जस्ट लाइक ए ट्रांजैक्शन ही हुआ। हाँ, ट्रांजैक्शन ही हुआ ना सर, लेंडिंग का बोरिंग का ट्रांजैक्शन हुआ ना। अच्छा, जैसे आजकल मार्केट में कोई शेयर 20% 30% गेन कर जाता है, तो अपन ने उसको लैंड कर रखा है, और जैसे आज रिलायंस 6% बढ़ गया, मैंने कल उसको करा, मेरे को वापस अब मार्केट में सेल करने का है, तो अपन सेल नहीं कर सकते ना उसको? नहीं, आपको इसमें जैसे कहा था, आपको पहले आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप करनी है, आपको पहले रिकॉल करना पड़ेगा। आपने लैंड किया हुआ है, रिकॉल के टाइम पे जो भी भाव अवेलेबल है कोट, वो कोट में मतलब आप उससे ले रहे हो बाजार से, और आप उसको दे रहे हो। यस, ओके। आप ये कर सकते हैं कि आपने रिकॉल का ट्रेड डाला है, ठीक है, आपका रिकॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो आप इमीडिएटली मार्केट में बेच दीजिए। वो आपका पेन वाले दिन माल उतर जाएगा आपका। ओके। और आपको मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा कि बेचने का मार्जिन आपको लगेगा, वो मार्जिन आपको देने होंगे, क्योंकि वो दोनों मार्केट अलग है। इक्विटी मार्केट का मार्जिनिंग कॉन्सेप्ट अलग है, एसएलबीएम सेगमेंट का अलग है। और ये लेंडिंग पे भी मार्जिन लगता है? लेंडिंग पे मार्जिन नहीं लगता है, वो तो इक्विटी चला गया अपना। हाँ राजेश भाई, इसके अंदर टैक्सेशन का कैसा है? टैक्सेशन का मैंने बताया ना अभी सर, लॉन्ग टर्म टैक्सिंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लाइंट का जो होल्डिंग है लॉन्ग टर्म वाला, वो इंटेक रहता है, उसको लॉन्ग टर्म ही गिना जाएगा। अच्छा, ओके। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टैक्सेशन कुछ लगता नहीं है? नहीं, आपका क्लाइंट का जो भी लॉन्ग, जैसा आपका क्लाइंट जब वो आप एक्चुअल बाजार में बेचते हो, जो टैक्स इफेक्ट आता है वही आपको इफेक्ट गिना जाएगा। ये बीच में अगर आपने ट्रांजैक्शन लैंड किया है तो वो उस टैक्सेशन को डिफर नहीं करेगा। राजेश भाई, ये डीपी आउट चार्ज लगेगा ना, जैसा अपन सेल करता है वो चार्ज लगेगा? हाँ, डीपी का चार्ज अलग से है सर, वो तो एक नॉर्मल चार्ज। और ये जीएसटी कहाँ पर लगेगा? वो जो अपन 20% फीस ले रहे हैं उस पे लगेगा। 20% जो फीस में जीएसटी लगेगा। हाँ, मतलब इन शॉर्ट क्लाइंट को मतलब आप मोटा मोटी पकड़िए तो 75% क्लाइंट को मिल जाता है, 4 to 4% जीएसटी में चला गया और अपना 20% अपने को मिलता है जिसमें हम शेयरिंग करते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा जो 25 रुपीज का कुछ बता रहे थे ना आप, वो ऐसा कोई अलग से चार्ज है क्या? सर वो तो डीपी का आप पूछ रहे हो ना, अलग से, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो इसका भी इनवॉइस देना पड़ेगा हमको, जो कमीशन शेयरिंग हमारा रहेगा उसमें? हाँ, वो आपको बताया दिया जाएगा, जैसा आप डेबिट नोट देते हैं उसी में डेबिट नोट में आप ऐड करके दे देंगे। अजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, सीरीज ए और सीरीज बी में क्या फर्क है? सीरीज ए जो होता है ना सर, इसमें एक तो लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम आपको कम मिलेगा,
सिंपल रीजन है कि इसमें छोटा सा अगर आपका एजीएम भी है ना तो आपका फोरक्लोज हो जाएगा। एजीएम है तो एजीएम भी अगर है, किसी का छोटा कॉर्पोरेट एक्शन भी है किसी कंपनी में, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು तो आपका जो भी आपने समझो अगर लैंड किया 5 रुपए में आज, और 5 दिन बाद ही इसका एजीएम आ गया, तो आपका 5 दिन बाद ही आपका सौदा जो है स्क्वायर अप हो जाएगा, आपको शेयर वापस आ जाएंगे और वो प्रो रेटा बेसिस पे आपका वो गिना जाएगा। मतलब 5 रुपया पूरा नहीं मिलेगा आपको, आपका जो भी समझो 10 दिन हुए तो 10 दिन का समझो 2 रुपया काट आपको मिलेगा, बाकी का 3 रुपया चला जाएगा। अच्छा, और सीरीज बी में एज इट इज रहेगा? सीरीज बी में एज इट इज रहेगा, खाली अगर बोनस है तो ही वो प्री क्लोज होता है, नहीं तो वो पूरा इंटैक्ट रहता है। डिविडेंड अपने अकाउंट में आ जाएगा? डिविडेंड आपको शेयर्स के संग में आ जाएगा वापस। ओके, ठीक है राजेश भाई, ये 2 साल से ये प्रोडक्ट चल रहा है, तो आपके हिसाब से रिटर्न कितना छूटता है? सर 2 साल हो गए। हाँ सही है सर, बट ये बेसिकली ऐसे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है सर। हाँ, मगर जनरल आपको भी, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट दूसरे सब बेच रहे हैं ये, तो ये प्रोडक्ट में आपको अंदाजा होगा कि कितना रिटर्न छूटा है। समझो रिलायंस है और अच्छी स्क्रिप्ट है HDFC बैंक, तो फिर उसके अंदर क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि खर्चा भी बहुत है, ये डीमेट में ट्रांसफर करेंगे वो खर्चा लगेगा, वो आप 20% जो ले रहे हैं उस पर GST लगेगा, सब करके खर्चा पकड़ के अगर साइजेबल रिटर्न नहीं आता है, कुछ थोड़ा भी ज्यादा, सर आप उसको परसेंटेज टर्म में गिन रहे हैं और हम उसको अलग टर्म से गिनते हैं सर। क्लाइंट का माल डीपी में पड़ा हुआ आपको क्या मिल रहा है? आपके क्लाइंट का अगर शेयर डीमेट में पड़ा हुआ है आइडल, उसमें कुछ उसको इनकम मिल रहा है। यहाँ पे अगर आपने उसको अगर 1000 रुपए भी कमा के दिया क्लाइंट को, सो इट इज एडिशनल इनकम फॉर द क्लाइंट व्हिच इज नॉट गेटिंग एनीवेयर एल्स। अच्छा, नहीं मैं थोड़ा एक लेट ज्वाइंट हुआ था, तो ये 20% कौन लेता है एग्जैक्टली? सर जो लैंडिंग फीस है उसका 20% इज वो चार्ज करते हैं, ठीक है, उसमें से अपन 50-50 शेयरिंग SRE चार्ज करता है। हाँ SRE चार्ज करता है, उसमें से अपन 50-50 शेयरिंग करते हैं। अच्छा 50-50 ब्रोकर और SRE का? यस सर। ओके राजेश, ये हम अपने लेंडिंग को अभी 100 शेयर्स अपन लेंडिंग में डाला है, तो वो खाली 50 नंबर्स बोरोइंग हुआ है, तो 50 बैलेंस ऐसा ही रहेगा ना? यस सर, यस सर, खाली 50 का ऊपर चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ठीक है राजेश जी, निधि से बोलिए। यस मैडम बोलिए। ये जो भी अर्निंग्स होते हैं इस लेंडिंग में, तो द अर्निंग्स एग्जांपल अगर क्लाइंट अगर 1000 रुपए कमाता है इससे, तो उसको टैक्स, ये उसके इनकम में, शॉर्ट टर्म इनकम में टैक्सेशन में आएगा या हाउ विल इट बी? मतलब उसको इनकम दिखानी पड़ेगी ना? ये जैसे अभी बता रहे थे मिसलेनियस इनकम में जाता है, ये मिसलेनियस इनकम। अच्छा, ये मिसलेनियस इनकम में जाता है, और जो क्लाइंट का स्लैब है उसमें आएगा। ओके, और ये यहाँ पे जो स्टॉक्स आप दिखा रहे हैं सीरीज बी में आप बोल रहे थे, तो इसमें जो इज देयर एनी गाइडलाइन फ्रॉम योर कि व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू लेंड एट? ऐसे मतलब रिलायंस शुड बी लेंड एट, तो क्या या जो दिख रहा है प्रिवेलिंग प्राइस वही देना है हमको? हाँ, इसमें दोनों ऑप्शन है, आपको सामने दिखा, जैसे HDFC AMC है सामने, the borrower is asking for 2.85, the lender is willing to give it the borrower is asking for 50 पैसे, lender is willing to give it 2.85। आप अपना कोड डाल दीजिए 2.5 का, जो भी आपको कोड डालना है, अगर borrower इंटरेस्टेड होगा वो ले लेगा आपका, जैसे इसमें लास्ट रेट 3 रुपए में हुआ है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको स्प्रेड भी दिखाता है, आप देखेंगे ना कि अंडरलाइंग LTV क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या चल रहा है। सो देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ 3 रुपीस वेयर विच समझो ना, तो अगर किसी में स्प्रेड है 3-4 रुपए का, तो एटलीस्ट 50% 60% में आपका यहाँ पे ट्रेड होता है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। Okay, I think so. Everybody is satisfied. Thank you everybody to join the meeting. सर एक लास्ट राजेश भाई थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, इसलिए एक बार खाली एक हाईलाइट्स कर देंगे तो मेरे को थोड़ा लाइट हो जाएगा, दूसरों को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ सर, बेसिकली सर देखिए SLBM मतलब सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग, एक तरह से अपने देसी भाषा में समझिए कि आप किसी को शेयर्स लोन पे दे रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको एक लेंडिंग फीस मिलेगी, ठीक है, जिसका एक महीने का इसका टेन्योर है, एक्सपायरी है। फर्स्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जो है वो इसका सेटलमेंट डे होता है। आपने जो भी शेयर्स लैंड किया है वो आपको फर्स्ट फ्राइडे को आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएगा।
ओके, ठीक है, एकदम सिंपल है। जो भी क्लाइंट का स्टॉक पड़ा है लॉन्ग टर्म के लिए, बेसिकली जो क्लाइंट यूज नहीं करना चाहता है, डीमेट में आइडल पड़ा है, जिसमें से उसको कुछ भी इनकम नहीं मिल रहा है, वो स्टॉक को इसमें लैंड करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता है। ओके, ये स्पेसिफिक स्टॉक है या कोई भी आपका डीपी में कोई भी पड़ा है? नहीं, इसमें बेसिकली आपके एफएनओ के सारे स्टॉक्स हैं, प्लस ए ग्रुप के वॉलेटाइल वाले जो आइटम है वो सब इसमें। ओके ओके। રાજેશભાઈ લેન્ડિંગ રેટ આપણે નક્કી કરવાનો છે કોઈ બી કંપનીનો? તમે કોડ મૂકી દો સાહેબ તમારા હિસાબથી, જે કોડ અહીંયા છે બાયર સેલર નો સામે કોડ જોઈને તમે તમારો ભાવ મૂકી દો. માનો કે આઈટીસી નો છે તો આપણે નક્કી કરું 2 રૂપિયા કે રીતે એમ? હા, તમને જેમ રાખો. હવે અહીંયા 34 પૈસામાં સેલર છે આ ભાવમાં. બરાબર છે. હવે તમને મને 1 રૂપિયો જોઈએ તમે 1 રૂપિયો મૂકી દો. ओके ओके। राजेश, ये खाली एनएससी पे होता है कि बीएससी में भी होता है? बीएससी में भी होता है, पर बीएससी में उसका लिक्विडिटी नहीं है। तो एनएससी નું ટર્મિનલ અલગ જોઈશે એવું? ના ના, એમાં ટર્મિનલની જરૂરત જ નથી સાહેબ. એ તમને કીધું ને, આપણે સ્પેસિફિકલી ઈમેલ આઈડી બનાવી છે srm.co.in. એમાં તમે મેલ કરી દો કે શું તમને ઓર્ડર નાખવાનું છે, અમે ઓર્ડર નાખીને તમને રિપ્લાય કરશું. રાજેશજી, એક ક્વેશ્ચન છે. સપોઝ કે આપણે લેન્ડિંગ કરેલું છે ઓલરેડી રિલાયન્સ નું. આજનો જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે રિલાયન્સ આજે 6% ઉપર આવ્યો, બરાબર. હવે લેન્ડર ને આ વેચવો છે સમજો, હા, તો આ કેસમાં શું કરી શકીએ? સૌથી પહેલા તમને તમારું જે એસએલબીએમ નો ટ્રેડ છે એ તમને સ્ક્વેર અપ કરવું પડશે. એના માટે તમને એક રીકોલ કરીને ઓર્ડર નાખવો પડે. ઓકે. હવે જે પણ પ્રિવેલિંગ ભાવ હશે એ વખતે એ ભાવમાં તમે આ એને એક તરફથી સ્ક્વેર અપ કરશો. હવે થઈ શકે કે તમે 2 રૂપિયામાં લેન્ડ કર્યું હોય ને આજે 4 રૂપિયાનો ભાવ છે તો તમે 4 રૂપિયા પરચેસ કરો. અચ્છા, એટલે ત્યાં એને ટ્રેડરને લોસ થશે 2 રૂપિયાની. હા, જે પણ માર્કેટમાં કોડ હોય, હા, એ આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ એન એક્ઝામ્પલ. અહીંયા જે પણ કોડ છે એ કોડમાં તમે બાય કર્યું અને તમે માર્કેટમાં વેચી કાઢો. બરાબર. ઓકે. અને આ કેસમાં આપ એ સામે સમજો આજે રિલાયન્સ મેં 4 રૂપિયામાં લઈ લીધા તો પછી મારે આજે ભાવ વધી ગયો તો હું વેચી શકું? हाँ, तो आज वेची काटो ना, वांधो नहीं, बिकॉज एज आई सेड ना सेटलमेंट T+1 पर है, एसएलबीएम का सेटलमेंट T+1 पे है, आपका नॉर्मल सेटलमेंट T+2 पे है। तो आपका माल आ जाएगा, आप आराम से उसको उतार सकते हैं। खाली आपको इमीडिएट रिकॉल जो भी प्राइस में है वो मैंने कर लिया और रिलायंस मुझे बेचना है, 100 शेयर मैंने लैंड किया है, दैट आई कैन सेल टुडे इटसेल्फ। यस यस यस, आपका एक बार रिकॉल ऑर्डर कंफर्म हो गया, आप यहाँ पे बेच दीजिए। खाली आपका जो सेलिंग का मार्जिन है वो आपको मार्जिन लगेगा, वो मार्जिन देना होगा। वो कितना 125 जो बोले? नहीं, इक्विटी का जो सेलिंग का मार्जिन लगता है वो, क्योंकि आपका शेयर 20%। हाँ, क्योंकि हम स्टॉक अपन अर्ली पे दे नहीं पाएंगे ना, स्टॉक है नहीं अपने पास। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग दिस। यस, थैंक यू राजेश भाई। राजेश सर, थैंक यू। होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड सर। और कुछ क्वेरी है तो फोन पे बात कर लीजिएगा सर। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।